Hello, good morning students. This is Amit Vyas. So students, today we will prove this next question with the help of principle of mathematical induction. Okay, so all of you know how to prove any question which is given in terms of natural number with the help of this induction. For proving any mathematical formula, mathematical statement with the help of this induction, we have to work in three steps. In first step, we will prove the given formula is true for n is equal to 1. After that, we will let that the given statement, given formula is already true for n is equal to k, and by using this second step, we will check whether the given formula is also true for n is equal to k plus 1. If it is also true, then the principle of mathematical induction, it will be true for all natural numbers. And if it is not true for n is equal to k plus 1, then we will say the given formula, given statement is not true for all natural numbers. Understand? So let us start to prove this question. In this question, we have to prove the sum of 1 plus 4 plus 7 up to n terms. Nth term of this series is 3n minus 2. This sum will be equal to half n into 3n minus 1. Okay, so step 1, for n is equal to 1. तो स्टेप 1 में क्या करना है, n is equal to 1 के लिए हमें pn को चेक करना है कि ये कैसा है, ट्रू है कि नहीं है. तो n is equal to 1 means we have to consider only first term in the left hand side. So first term in the left hand side is 1. So in the left hand side we will get only 1, and in the right hand side we will put 1 in place of n at everywhere. So we get 1 upon 2. In place of n I have to put 1. So 3 into n. In place of n I am going to put 1 minus 1. So we get 1 is equal to 1 upon 2 into 1. Inside the bracket 3 into 1, 3 minus 1 into 2. So 2 will cancel out. So we get 1 is equal to 1. Means corresponding to 1, we are getting left hand side is equal to right hand side. It means that corresponding to 1, Pn is true. So here we will write Pn is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए Pn ट्रू है. Pn मीन्स ये जो हमें सीरीज गिवन है, ये जो हमको फार्मूला गिवन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये 1 के लिए तो ट्रू है. लेकिन यहाँ से हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा. उसके लिए हमको तीनों स्टेप को देखना पड़ेगा. अभी तो केवल ये 1 के लिए ट्रू हुआ है. अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 2 के लिए भी ट्रू होगा. केवल और केवल 1 के लिए अभी ट्रू है, इतना हम श्योर हैं. बाकी अभी हम बिल्कुल गारंटी नहीं कर सकते कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा. अंडरस्टैंड? तो लेट अस डू द सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, लेट करना है. सो लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. ये जो मेरा k है, ये क्या है, एनी नेचुरल नंबर है. k जो है रैंडमली एनी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर. k जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एनी नेचुरल नंबर. k जो हमने यहाँ पर लिया है, ये जनरल मेरा कोई भी एक नेचुरल नंबर है. k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं, 3, 4, 5, 2, 1, 7. अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या ले रहे हैं कि k के लिए ये ट्रू है. तो अगर k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश 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 प्लस kth टर्म. तो kth टर्म हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 अपॉन 2k इंटू 3k माइनस 1. क्योंकि k के लिए तो ट्रू है ना, तो k टर्म्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ k इंटू 3k माइनस 1 के इक्वल होगा. इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे. तो नाउ
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश 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 प्लस 3k माइनस 2, ये तो हमारा kth टर्म हुआ। k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा भाई, nth टर्म हमको मालूम है ना, तो इसी में जो हमने k रखा तो हमको kth टर्म पता चल गया 3k माइनस 2। इसी में जो हम n के प्लस में k प्लस 1 रखेंगे तो हमको k प्लस 1th टर्म पता चल जाएगा। सी हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 2। सो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डैश 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 प्लस 3k माइनस 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 2। तो सिंस ये वाला जो सम है ये तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको मालूम है कि इस सम की वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके प्लेस में चूँकि 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3k माइनस 2 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ k इंटू 3k माइनस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस 1। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा k इंटू 3k माइनस 1 प्लस 6k प्लस 2। एलसीएम 2 आया, तो ये हो गया मेरा। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 2 अपॉन 2। ओके, सो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइ प्लस 5k प्लस 2 और होल अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट प्लेस में करते हैं इधर। तो क्या आया था मेरा, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2। इसको फैक्टराइज करिए, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 2k बाई 5k को लिख सकते हैं 2k प्लस 3k प्लस 2 होल अपॉन 2। सो ये आ जाएगा, इन दोनों में k कॉमन तो आ जाएगा 3k प्लस 2 और रिमेनिंग इन दोनों में 1 कॉमन हो गया तो 3k प्लस 2 होल अपॉन 2। अब 3k प्लस 2 तो होल से कॉमन है, तो 3k प्लस 2 को हमने होल से कॉमन ले लिया और अंदर आ गया k प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 को पहले राइट कर दें और 3k प्लस 2 को ऐसे अपॉन 2। अब इसमें थोड़ा हम चेंज और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 3k प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3k प्लस 1 माइनस 1। देखिए ज़रा, अभी भी तो ये 3k प्लस 2 लिखा है और 3k प्लस 3 माइनस 1, तो 3k प्लस 2 ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। जो गिवन सीरीज़ थी उसका राइट हैंड साइड क्या था, एक बार यहाँ राइट कर देता हूँ, 1/2 इंटू n इंटू 3n माइनस 1। जो गिवन सीरीज़ है हमारी उसका राइट हैंड साइड ये था, क्योंकि गिवन सीरीज़ में n टर्म्स थे, तो n टर्म्स होने की वजह से उनका सम क्या था, हाफ n इंटू 3n माइनस 1।
अगर गिवन सीरीज़ में p टर्म्स होते तो उनका सम क्या होता, हाफ p इंटू 3p माइनस 1। अगर गिवन सीरीज़ में k प्लस 1 टर्म्स अगर हम लेंगे तो फिर राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, हाफ k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए जब हमने k प्लस 1 टर्म्स के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया तो यही तो आ गया, n की जगह k प्लस 1 शिफ्ट होके यही तो आ गया। तो यही तो हमको चाहिए था, अंडरस्टैंड। जब हमने k प्लस 1 टर्म्स का सम निकाला तो मेरा क्या आ गया, हाफ k प्लस 1 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो यही तो आना चाहिए था, मतलब जहाँ जहाँ n है वो k प्लस 1 शिफ्ट होके आना चाहिए था। तो वही तो मेरा आ गया, अंडरस्टैंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो Pn है, Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए भी अगर ट्रू हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अब ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो यही हमको प्रूफ करना था कि गिवन सीरीज, गिवन फार्मूला would be true for all natural numbers, understand। so I hope सभी के समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं भी किसी स्टेप में फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, या आप अपना क्वेश्चन राइट करके मुझे सेंड कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।